ರಾಮನೆಲ್ಲೋ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಎಂದು ನುಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೆರಳಿನಂತೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಿನ, ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿದ ಮನವೇ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದಿರ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೇನು ರಾಮನಾಮವ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ. ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆಯ ಓ ರಘುರಾಮ. ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ. ನಾನು ನಾನು ಎನ್ನುವ ದಾನವ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇರುವ, ಬೇಕು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸ ಮನದಲ್ಲೇ ಇರುವ. ನಾನು ನಾನು ಎನ್ನುವ ದಾನವ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇರುವ, ಬೇಕು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸ ಮನದಲ್ಲೇ ಇರುವ. ರೋಷವೆನ್ನುವ ದ್ವೇಷವೆನ್ನುವ, ರೋಷವೆನ್ನುವ ದ್ವೇಷವೆನ್ನುವ ಅಹಿಮಹಿ ರಾವಣರನ್ನು ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮನೇ, ಲೋಭ ನನ್ನ ಕಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುತನೇ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮನೇ, ಲೋಭ ನನ್ನ ಕಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುತನೇ. ನನ್ನೇ ನುಂಗುವ ಆಸೆ ಎನ್ನುವ, ನನ್ನೇ ನುಂಗುವ ಆಸೆ ಎನ್ನುವ ಭೂತದ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರೆನು. ಅಯ್ಯ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆಯ ಓ ರಘುರಾಮ. ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ
ರಘುರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ 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 ರಘುರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ 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 ರಘುರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಶ್ರೀಪಾದ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಶ್ರೀಪಾದ, ಹನುಮನು ನಂಬಿದ ರಾಮನ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ. ಬಾಳಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು, ಕಂಗಳ ತುಂಬ ತುಂಬಲೆ ಸಾಕು. ಬಾಳಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು, ಕಂಗಳ ತುಂಬ ತುಂಬಲೆ ಸಾಕು. ಕೈಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಲಿ ಸಾಕು, ಕೈಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಲಿ ಸಾಕು. ಆನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ. ಕಂಬನಿಯಿಂದ ಪಾದವ ತೊಳೆವೆ, ಮನವನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡುವೆ. ಕಂಬನಿಯಿಂದ ಪಾದವ ತೊಳೆವೆ, ಮನವನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡುವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಚರಣದಿ ಶಿರವನು ನಾನಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ. ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಶ್ರೀಪಾದ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಶ್ರೀಪಾದ, ಹನುಮನು ನಂಬಿದ ರಾಮನ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ 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 ಆ ಪಾದ. ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ. ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ. ಕೃಪಾಸಾಗರ
ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ ಸುರನರ ವಂದಿತ ಮುನಿಜನ ಸೇವಿತ ಸುರನರ ವಂದಿತ ಮುನಿಜನ ಸೇವಿತ ಮನದಲೆಂದು ನಿಲುವೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವೆ ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ ಕಮಲವ ನಗಿಸುವ ಮೊಗವೇ ಅಂದ ಕಮಲವ ಕುಣಿಸುವ ಕಂಗಳೆ ಅಂದ ಕಮಲವ ನಗಿಸುವ ಮೊಗವೇ ಅಂದ ಕಮಲವ ಕುಣಿಸುವ ಕಂಗಳೆ ಅಂದ ನೀಲಿಯ ಕಮಲವೇ ನಾಚುವ ಹಾಗೆ ನೀಲಿಯ ಕಮಲವೇ ನಾಚುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ತನುವಿನ ಬಣ್ಣವೇ ಚಂದ ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಸುಗುಣ ಸ್ವರೂಪನೇ ನೀನೊಲಿದಾಗ ಸುಗುಣ ಸ್ವರೂಪನೇ ನೀನೊಲಿದಾಗ ಬಾಳಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ ಬಿಲ್ಲನು ಹಿಡಿದ ರೀತಿಯ ಸೊಗಸು ನಿಂತ ಟಿವಿಯೇ ನೋಡಲು ಸೊಗಸು ಬಿಲ್ಲನು ಹಿಡಿದ ರೀತಿಯ ಸೊಗಸು ನಿಂತ ಟಿವಿಯೇ ನೋಡಲು ಸೊಗಸು ಆ ಪೀತಾಂಬರ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ ಪೀತಾಂಬರ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ ಹೊನ್ನ ಕಿರೀಟದ ಸೊಗಸೇ ಸೊಗಸು ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ ಸುರನರ ವಂದಿತ ಮುನಿಜನ ಸೇವಿತ ಸುರನರ ವಂದಿತ ಮುನಿಜನ ಸೇವಿತ ಮನದಲೆಂದು ನಿಲುವೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವೆ ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ
ಬರಬಾರದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರಬಾರದೆ ಕನಸಲಾದರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ನಿಲಬಾರದೆ ರಾಮ ನಿಲಬಾರದೆ ಬರಬಾರದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರಬಾರದೆ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಾ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬಾರದೆ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಾ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬಾರದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನಗಿನ್ನು ದಯಬಾರದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನಗಿನ್ನು ದಯಬಾರದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿನ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿನ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂದ ಅನುದಿನ ಆನಂದ ತರುತ್ತೆಹ ಜನಕ ಸುತೆಯ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿಯೇ ಬರಬಾರದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರಬಾರದೆ ಕಣ್ಣ ಕಾಂತಿಯ ಮೊಗದ ಶಾಂತಿಯ ನಾ ನೋಡುವಾಸೆ ಇರಬಾರದೆ ಕಣ್ಣ ಕಾಂತಿಯ ಮೊಗದ ಶಾಂತಿಯ ನಾ ನೋಡುವಾಸೆ ಇರಬಾರದೆ ಪುಣ್ಯ ನನಗಿಂದು ಕೊಡಬಾರದೆ ಪುಣ್ಯ ನನಗಿಂದು ಕೊಡಬಾರದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಲಾರೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡಲ ಶಕ್ತ ನಾನು ಕರುಣೆ ತೋರೆಯ ನನ್ನ ದೊರೆಯೇ ಬರಬಾರದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರಬಾರದೆ ಕನಸಲಾದರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ನಿಲಬಾರದೆ ರಾಮ ನಿಲಬಾರದೆ ಬರಬಾರದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರಬಾರದೆ ಬರಬಾರದೆ ಬಂದು ನಿಲಬಾರದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಹಾಮಹಿಮ ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಮಹಾಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅವನನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರೆ ಅಪಚಾರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದೇ ಈ ಗೀತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಾಗಿ, ಆ ಆದಿಕವಿಗಾಗಿ ಈ ಅಭಿವಂದನಾ ಗೀತೆ. ಧನ್ಯ ನೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಯೇ, ಧನ್ಯ ನೀನು ಆದಿ ಕವಿಯೇ. ಧನ್ಯ ನೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಯೇ, ಧನ್ಯ ನೀನು ಆದಿ ಕವಿಯೇ. ರಾಮನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ.
ರಾಮನಾಮದ ಸುಧೆಯ ತಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. ಧನ್ಯ ನೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಯೇ, ಧನ್ಯ ನೀನು ಆದಿ ಕವಿಯೇ. ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ರಾಮನ ನುಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ರಾಮಚರಿತೆಯ ಹಾಡಿದೆ, ಹಾಡಿಸಿ ನಲಿದಾಡಿದೆ. ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ರಾಮನ ನುಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ರಾಮಚರಿತೆಯ ಹಾಡಿದೆ, ಹಾಡಿಸಿ ನಲಿದಾಡಿದೆ. ಲೋಕಮಾತೆಯ ನೋಡಿದೆ, ಶೋಕದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆ. ಲೋಕಮಾತೆಯ ನೋಡಿದೆ, ಶೋಕದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆ. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ನೊಂದು ಸೀತೆಗಾಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ. ಧನ್ಯ ನೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಯೇ, ಧನ್ಯ ನೀನು ಆದಿ ಕವಿಯೇ. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ಆನಂದಧಾಮ. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಲಿಯುವಳು. ರಾಮ 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 ರಾಮ. ರಾಮನಾಮದ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಯ ಆಂಜನೇಯನೋ ಬಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮನಾಮದ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಯ ಆಂಜನೇಯನೋ ಬಲ್ಲ. ರಾಮನಾಮದ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೂ ಬಲ್ಲ. ರಾಮನಾಮವೋ ತರುವ ಭಾಗ್ಯವ ಗೌತಮ ಋಷಿಯೋ ಬಲ್ಲ. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ಆನಂದಧಾಮ.
ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಲಿಯುವಳು. ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಭರತನು ಬಾಳಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣದ ಆನಂದವನು ಕಂಡ. ಭರತನು ಬಾಳಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣದ ಆನಂದವನು ಕಂಡ. ಆ ದಶಕಂಠನ ಸೋದರನಂದು, ಆ ದಶಕಂಠನ ಸೋದರನಂದು ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ಆದ. ದ್ವೇಷದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ರಾಮನ ರಾವಣ ಮುಕುತಿಯ ಹೊಂದಿದ. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ಆನಂದಧಾಮ. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಲಿಯುವಳು. ರಾಮ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಲಿಯುವಳು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಮೈನವಿರೇಳುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸು ಕುಣಿಯುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಮೈನವಿರೇಳುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸು ಕುಣಿಯುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಕಂಬನಿ ತುಂಬುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಕಂಬನಿ ತುಂಬುವುದು. ತುಂಬಿದ ಆನಂದ ತಾಳಲಾರದೆ ಕಂಠವು ಬಿಗಿಯುವುದು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ.
ಸಾಕು ಹೃದಯವು ಅರಳುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಕತ್ತಲು ಕರಗುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಹೃದಯವು ಅರಳುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಕತ್ತಲು ಕರಗುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಚಂದ್ರಿಕೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಚಂದ್ರಿಕೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು. ಆ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ, ಆ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪೂನಗೆ ಕಾಣುವುದು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಮೈನವಿರೇಳುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸು ಕುಣಿಯುವುದು. ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಕಂಬನಿ ತುಂಬುವುದು. ತುಂಬಿರ ಆನಂದ ತಾಳಲಾರದೆ ಕಂಠವು ಬಿಗಿಯುವುದು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಘುರಾಮ. ರಾಮ 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 ಬೆರೆಸೋ ಉಸಿರಲಿ ರಾಮನ, ಸ್ಮರಿಸೋ ಅನುಕ್ಷಣ ರಾಮನ. ಬೆರೆಸೋ ಉಸಿರಲಿ ರಾಮನ, ಸ್ಮರಿಸೋ ಅನುಕ್ಷಣ ರಾಮನ. ರಾಮ 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 ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಕಷ್ಟವು ಬಳಿ ಬರದಲ್ಲ. ರಾಮ 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 ಎನ್ನದೆ ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ 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 ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಕಷ್ಟವು ಬಳಿ ಬರದಲ್ಲ. ರಾಮ 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 ಎನ್ನದೆ ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ 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 ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಕತ್ತಲ ಬಾಳಲಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ 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 ಎಂದರೆ ಸಾಕು ಕತ್ತಲ ಬಾಳಲಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ 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 ಎನ್ನದೆ ನೀನು ಚಿಂತೆಯು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆರೆಸೋ ಉಸಿರಲಿ ರಾಮನ, ಸ್ಮರಿಸೋ ಅನುಕ್ಷಣ ರಾಮನ.
ಹೂವಲಿ ಕಂಪು ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ತುಂಬಿ, ಹೂವಲಿ ಜೇನು ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಹೃದಯದಿ ರಾಮನ ತುಂಬಿ, ಹೂವಲಿ ಕಂಪು ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ತುಂಬಿ, ಹೂವಲಿ ಜೇನು ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಹೃದಯದಿ ರಾಮನ ತುಂಬಿ, ನೀರನು ಮೀನು ನಂಬಿದ ಹಾಗೆ, ನೀರನು ಮೀನು ನಂಬಿದ ಹಾಗೆ ರಾಮನ ಪಾದವ ನಂಬಿ, ಬಾಳದೆ ಹೋದರೆ ನರಳುವೆ ಕೊನೆಗೆ ಬದುಕಲಿ ವೇದನೆ ತುಂಬಿ, ಬೆರೆಸೋ ಉಸಿರಲಿ ರಾಮನ ಸ್ಮರಿಸೋ ಅನುಕ್ಷಣ ರಾಮನ, ಬೆರೆಸೋ ಉಸಿರಲಿ ರಾಮನ ಸ್ಮರಿಸೋ ಅನುಕ್ಷಣ ರಾಮನ. ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೇನು ರಾಮನಾಮವ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ, ಕನಸು ಮನಸಲಿ ಅವನ ತುಂಬಿ, ಹಗಲು ಇರುಳಲಿ ನೆನಪ ತುಂಬಿ, ಕನಸು ಮನಸಲಿ ಅವನ ತುಂಬಿ, ಹಗಲು ಇರುಳಲಿ ನೆನಪ ತುಂಬಿ, ರಾಮ 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 ಎಂದರಾಯಿತು, ಮುಕುತಿಯ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನದಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ. ಮಗನ ಅಗಲಿದ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನುತ್ತ, ತಂದೆ ದಶರಥ ಹಸುವನೀಗಿದ ಕಂಬನಿಯನು ಮಿಡಿಯುತ್ತ, ಮಗನ ಅಗಲಿದ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನುತ್ತ, ತಂದೆ ದಶರಥ ಹಸುವನೀಗಿದ ಕಂಬನಿಯನು ಮಿಡಿಯುತ್ತ, ವೈರಿ ಎನ್ನುವ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನುತ್ತ, ರಾವಣೇಶ್ವರ ಹಸುವನೀಗಿದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತ, ಶತ್ರುವಾದರು ರಾವಣೇಶ್ವರ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವ ಸೇರಿದ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೇನು ರಾಮನಾಮವ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ. ಪತಿಯ ಕಾಣದ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನುತ್ತ, ಹಗಲು ಇರುಳು ನೊಂದು ಬೆಂದಳು
ಸೀತೆಯು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಪತಿಯ ಕಾಣದೆ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನುತ್ತ ಹಗಲು ಇರುಳು ನೊಂದು ಬೆಂದಳು ಸೀತೆಯು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಪಾದುಕೆಗಳ ಪೂಜಿಸುತ್ತ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನುತ್ತ ಪಾದುಕೆಗಳ ಪೂಜಿಸುತ್ತ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನುತ್ತ ಭರತ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಉಳಿದ ರಾಮನ ಕಾಯುತ್ತ ಭರತ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಉಳಿದ ರಾಮನ ಕಾಯುತ್ತ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸಲೇನು ರಾಮನ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯು ಅಳಿವುದಾಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೇನು ರಾಮನಾಮವ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಅನುದಿನ ಆಂಜನೇಯನು ಧನ್ಯನಾದನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಅನುದಿನ ಆಂಜನೇಯನು ಧನ್ಯನಾದನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ ರಾಮನ ರಾಮನೆಲ್ಲೋ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ರಾಮನೆಲ್ಲೋ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಎಂದು ನುಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೆರಳಿನಂತೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಿನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿದ ಮನವೇ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದಿರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೇನು ರಾಮನಾಮವ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೇನು ರಾಮನ ಜಪವ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆಯ ಓ ರಘುರಾಮ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ರಘುರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ 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 ರಘುರಾಮ ನಾನು ಎನ್ನುವ ದಾನವ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇರುವ ಬೇಕು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸ ಮನದಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಾನು ಎನ್ನುವ ದಾನವ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇರುವ ಬೇಕು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸ ಮನದಲ್ಲೇ ಇರುವ ರೋಷವೆನ್ನುವ ದ್ವೇಷವೆನ್ನುವ ರೋಷವೆನ್ನುವ ದ್ವೇಷವೆನ್ನುವ ಅಹಿಮಹಿ ರಾವಣರನ್ನು ಬೇಗ
ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮನೇ, ಲೋಭ ನನ್ನ ಕಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುತನೇ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮನೇ, ಲೋಭ ನನ್ನ ಕಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುತನೇ. ನನ್ನೇ ನುಂಗುವ ಆಸೆ ಎನ್ನುವ, ನನ್ನೇ ನುಂಗುವ ಆಸೆ ಎನ್ನುವ ಭೂತದ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರೆನು. ಅಯ್ಯ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆಯ ಓ ರಘುರಾಮ, ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ಬೇಗ ಕೊಲ್ಲೋ ಕೋದಂಡ ರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಶ್ರೀಪಾದ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಶ್ರೀಪಾದ, ಹನುಮನು ನಂಬಿದ ರಾಮನ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ. ಬಾಳಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು, ಕಂಗಳ ತುಂಬ ತುಂಬಲೆ ಸಾಕು. ಬಾಳಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು, ಕಂಗಳ ತುಂಬ ತುಂಬಲೆ ಸಾಕು. ಕೈಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಲಿ ಸಾಕು, ಕೈಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಲಿ ಸಾಕು. ಆನಂದವೇ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ. ಕಂಬನಿಯಿಂದ ಪಾದವ ತೊಳೆವೆ,
ಮನವನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡುವೆ. ಕಂಬನಿಯಿಂದ ಪಾದವ ತೊಳೆವೆ, ಮನವನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡುವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಗಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಚರಣದಿ ಶಿರವನು ನಾನಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾದ. ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಶ್ರೀಪಾದ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಶ್ರೀಪಾದ. ಹನುಮನು ನಂಬಿದ ರಾಮನ ಪಾದ. ಎಲ್ಲಿದೆ 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 ಆ ಪಾದ. ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ. ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ. ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ. ಸುರನರ ವಂದಿತ ಮುನಿಜನ ಸೇವಿತ, ಸುರನರ ವಂದಿತ ಮುನಿಜನ ಸೇವಿತ. ಮನದಲೆಂದು ನಿಲುವೆ, ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವೆ. ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಯನ ಮನೋಹರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವೇ. ಕಮಲವ ನಗಿಸುವ ಮೊಗವೇ ಅಂದ, ಕಮಲವ ಕುಣಿಸುವ ಕಂಗಳೆ ಅಂದ. ಕಮಲವ ನಗಿಸುವ ಮೊಗವೇ ಅಂದ, ಕಮಲವ ಕುಣಿಸುವ ಕಂಗಳೆ ಅಂದ. ನೀಲಿಯ ಕಮಲವೇ ನಾಚುವ ಹಾಗೆ, ನೀಲಿಯ ಕಮಲವೇ ನಾಚುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ತನುವಿನ ಬಣ್ಣ. माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं।
पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतिष्ठा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं, उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वह स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए, स्वयं को उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है,
कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है, और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवत गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक भुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया। उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था। भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप, तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है, और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्री शैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो।
तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितिता निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूं आशीर्वचन के लिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान का महोत्सव हो रहा है। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की जय जय सीताराम। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक
श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन
उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है। यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में
यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत, ऋषि, आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव,
आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुंच न पाए, ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था, उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे? रामायण में क्यों गए थे बाहर? तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए। वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग, तपस्या, प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी।
छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या? ये बात बताइए, वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था। ऐसे वो थे और धर्मरत थे। यानी क्या थे? इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो 4 मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना, यह धर्म का पहला जो पैर है, सत्य, उसका आचरण है। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है सेवा और परोपकार। सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है। तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाएं, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। यह करुणा का अर्थ आज है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं, और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट इट कैनॉट सैटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना। सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना, यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके, प्राणों का बलिदान देके, खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया? वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है। उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है। जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को
अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। सब लोग तो यहां आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे, देख रहे। अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है। इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहाँ उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है।
22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों,
त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो
भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। मेरे